سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ پولیس کا تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی تیاریاں۔ لاہور کے 35 سرکس کو کم کر کے 20 کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ تھانوں کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے گا۔ ڈی ایس پیز کی تعداد 35 سے بڑھا کر 40 کی جائے گی، جبکہ ڈی ایس پیز کے لیے ڈبل کیبن ڈالے گئے۔ انسپیکٹر سے اے ایس آئی تک 3680 سیٹوں کی منظوری دی گئی ہے۔ پولیس کا تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی تیاریاں۔ لاہور کے 35 سرکلز کو کم کر کے 20 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکل کم کر کے تھانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا۔ شہر میں موجود 35 ڈی ایس پیز کی ذمہ داریاں بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ڈی ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن تعینات کیے جائیں گے۔ لاہور پولیس میں ڈی ایس پیز کی تعداد بھی 40 کر دی جائے گی۔ 20 ڈی ایس پیز آپریشن ونگ اور 20 انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات ہوں گے۔ 35 سال بعد ڈی ایس پیز کی بھی سنے گی۔ الافسران کے بعد اب ڈی ایس پیز کے لیے گاڑیاں پہنچنا شروع ہو گئی۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع کے 64 ڈی ایس پیز کو گاڑیاں وصول کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور سمیت دیگر شہروں کے 64 ڈی ایس پیز کے لیے ڈبل کیبن ڈالے موٹر ٹرانسپورٹ ونگ میں پہنچ گئے۔ مختلف اضلاع میں تعینات ڈی ایس پیز کو گاڑیاں وصول کرنے کے لیے نمائندہ بھجوانے کا مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کانسٹیبل کی 5000 اسامیاں خالی کر کے 3680 انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی سیٹوں کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ نے نئی سیٹوں کا ریجنل کوٹا منظور کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کانسٹیبل کی سیٹیں ختم کر کے اب انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی 3680 سیٹوں کو ریجنز میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق چھوٹے رنگ کے افسران کی کمی کی وجہ سے کانسٹیبل کی سیٹیں ختم کر کے نئی سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں میڈ ٹرم صوبائی آمدن کا پلان تیار کر لیا گیا۔ محکمہ نے ٹیکس کی مد 2026 تک کا پلان حکومت کو پیش کر دیا ہے۔ آئندہ مالی سال سے 2026 تک 683 ارب ٹیکس وصولی کے اہداف مقرر کرنے کی سفارشات ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے عالمی بینک کے تعاون سے پرائیڈ پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت صوبے میں ذرائع آمدن کے حصول کو بہتر بنانا ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب میں میڈ ٹرم صوبائی آمدن کا پلان تیار کر لیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے ٹیکس کی مد میں 2023 سے 2026 تک 683 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کرنے کی تجاویز دی ہیں، جبکہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 22 سے 74 ارب روپے ٹیکس کی وصولی کا ہدف مقرر کرنے کی سفارشات ہیں۔ موٹر وہیکل کی مد میں 19 ارب روپے سے 74 ارب تک ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 68 ارب روپے سے 124 ارب روپے تک ٹیکس جمع کرنے کی سفارشات پیش کی گئیں۔ ٹیکس وصولی سے صوبے کی گروتھ ریٹ میں 24% تک اضافہ متوقع ہے۔ مالی مسائل سے دوچار واسا کو شدید خسارے کا سامنا۔ واسا کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی اور مالی معاملات چلانے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب حکومت سے 4 ارب 44 کروڑ سے زائد کا بیل آؤٹ پیکیج طلب کر لیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے بیل آؤٹ پیکیج کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ سمری میں کہا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں واسا پر لیسکو کے واجبات 3 ارب 30 کروڑ سے زائد تھے۔ رواں مالی سال واسا پر لیسکو واجبات 4 ارب 97 کروڑ 90 لاکھ ہو گئے۔ واسا نے واجبات نہ ادا کیے تو یہ خسارہ 6 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ واسا کو فوری طور پر بیل آؤٹ پیکیج نہ دیا گیا تو سالانہ خسارہ 6 ارب 62 کروڑ سے تجاوز کر جائے گا۔ واسا نے پنجاب حکومت نے سالانہ سبسڈی میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، واسا نے 2004 سے ٹیرف نہیں بڑھایا اور ٹیرف نہ بڑھنے سے مالی معاملات سبسڈی یا بیل آؤٹ پیکیج کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور صرف نام کے رہ گئے۔ غریبوں کو ریلیف دینے کے نام پر بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز اشیاء ضروریات سے خالی ہیں۔ کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کہتی ہیں، روزگار ہے نہیں، مہنگائی سے ڈپریشن بڑھ گئی ہے۔ کی کچی آبادیوں اور کالونیوں میں بنے یوٹیلیٹی سٹورز برائے نام رہ گئے۔ غریب عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہیں۔ ان یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والے غریب شہریوں نے ہفتے سے سستے آٹے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ بڑی پریشانی ہے، 2-2.5 مہینے ہو گئے، آٹا نہیں مل رہا، لوگ کاروبار نہیں ہے، بندہ غریب بندہ کیا کرے گا ادھر۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں اور دیگر اشیاء ضروریات کی بھی بدترین قلت دیکھی جا رہی ہے۔ خواتین کہتی ہیں 2 وقت کی روٹی حکمران طبقے سے مانگتے ہیں، یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مہنگا آٹا خرید نہیں سکتے، بچوں کو کیا کھلائیں۔ آٹا ہی نہیں آندا، ہاں جی اتنا آٹے تو تنگ ہوئے پے ہیں جڑا کوئی حساب نہیں۔ بچے کھان والے کاروبار ہے کو نہیں گا، اینا مہنگا کتوں لے کے کھاوے بندہ دکاناں تو۔ شہریوں کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے گزارش ہے کہ معاملے کی سنگین نوٹس لیں اور غربا کو آٹے سمیت دیگر اشیاء ضروریہ مہیا کریں۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CT 42 لاہور۔
अवामी रिक्शा यूनियन का ट्रैफिक वार्डन्स के मुबैना तशद्दुद नाजायज़ चलान करने पर एहतजाजी मुजाहरा। रिक्शा ड्राइवर सीटीओ पर भी बरहम हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से सीटीओ और ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। अवामी रिक्शा यूनियन ने यतीम खाना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन के सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी रफाकत की क़यादत में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने यतीम खाना चौक पर रिक्शे खड़े करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सीटीओ और ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि ट्रैफिक वार्डन्स नाजायज चालान करने के साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स पर तशद्दुद भी करते हैं। ये गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि सीटीओ साहब ने आर्डर दिया है। सीटीओ साहब, इनको लगाम डाली जाए। कल बत्ती चौक से भाटी चौक तक बहुत बड़ी रैली होगी, उसकी क़यादत मजीद गौरी करेगा और अगर आपने इनको ना रोका तो फिर पूरे लाहौर में दमादम मस्क अंदर होगी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक वार्डन्स को रेवेन्यू इकट्ठा करने पर लगा दिया है। वार्डन्स सीटीओ की हदायत पर टारगेट पूरा करने के लिए गरीब रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल वालों का चालान कर रहे हैं। जो 800,000 कमाते हैं वो चालान करके ट्रैफिक पुलिस वाले छीन लेते हैं। रिक्शा ड्राइवर को गाली गलौज, मारपीट, ये आप लोगों का वतीरा बन चुका हुआ है। आपसे जो है ना मुतालबा करते हैं कि इससे ऐसी काली बेड़ों को फौरी तौर पे इनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। मजदूर आदमी रिक्शा चलाने के लिए रोड पे आता है और उसका 2000 का चलान कर दे और चपेड़े ठुड्डे मारते हैं रिक्शा ड्राइवर को। रिक्शे की सीटें निकाल के 2-2, 3-3 घंटे सड़कों पे जलील करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। नाजायज चालान के सबब नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ रुमेली लियास, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ अस्पतालों में हड़ताल जारी। चिल्ड्रन जनरल गंगाराम अस्पतालों के आउटडोर्स बंद हैं, जबकि सर्विसेज पीआईसी और न्यू अस्पताल आने वाले मरीज भी ख्वार होने लगे। इलाज मुआवजे की फाहमी मुअत्तल, मरीज मायूस घरों को लौट गए। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ शहर के अस्पतालों में तीसरे रोज भी हड़ताल रही। चिल्ड्रन जनरल जिना गंगाराम अस्पताल के आउटडोर्स बंद रहे। सर्विसेज पीआईसी और मेयो अस्पताल की ओपीडीज में भी डॉक्टर्स और तिबी अमले ने काम ना किया। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाज मुआवजा न होने पर मायूस वापस लौट गए। डॉक्टरों की हड़ताल का खुमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का कहना था डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है, अब इलाज के लिए कहां जाएं? हुकूमत मसले को हल करे। इमरजेंसी की ये मैंने स्लिप बनवाई है, ठीक है, तो उधर डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया, वो चेक भी नहीं किया उसने बोला इधर चले जाओ। इधर आया हूँ तो सारा कुछ बंद है, वो कह रहे हैं वापस चले जाओ इमरजेंसी। तो इतना परेशान हो रहा हूँ, पेन भी साथ है और उसके साथ ये डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं। जब उस डॉक्टर को पता भी है तो बंद है, तो आधा किलोमीटर इधर भेज दिया है। आधा किलोमीटर चल के जाइए। 70 साल मेरी उम्र है कि दिमाग डॉक्टरों का खराब है कि मेरा खराब है, ये मैंने समझा दो। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? ये तो अपने आप में ये सारे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। मर तो गरीब रहा है ना, जिसके पास ना तो टाइम है, अगर वो दिहाड़ी तोड़ के आए अपना इलाज मुआवजे के लिए तो आगे कुछ नहीं है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जनरल जिना और मेयो अस्पताल में हड़ताल के साथ एहतजाज भी किया गया। YDA का मुतालबा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत का कानून फौरी नाफिज किया जाए, वरना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ग्रीन टाउन में ग्रेड 17 का टीचर खुद ही ग्रेड 20 का प्रिंसिपल बन गया, जबकि सरकारी कागजों में मोहम्मद अहमद स्कूल इंचार्ज हैं। असातिज़ा ने CEO एजुकेशन से मुस्तकिल हेड की तैनाती का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 5D2 ग्रीन टाउन में ग्रेड 17 का टीचर ग्रेड 20 का प्रिंसिपल बन गया। टीचर गुलसेफ ने प्रिंसिपल का बोर्ड भी आवेज़ा कर दिया। हालांकि स्कूल के रजिस्टर पर मोहम्मद अहमद के पास स्कूल इंचार्ज का ओहदा है। असातिज़ा की ज़ाती अनात के बायस तालीमी निज़ाम तबाह होकर रह गया। बच्चों को पढ़ाई की करवाने की बजाय सफाई करवाई जाती है। असातिज़ा स्कूल के औकात में तुलबा को बाहर ज़ाती काम पर भेज देते हैं। ज़राए के मुताबिक आर्ट्स टीचर मोहम्मद जुल्फ़कार मुबैना तौर पर रिश्वत देकर साइंस की सीट पर विराजमान है, जबकि स्कूल में साइंस पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद आर्ट्स टीचर ज्यादा हैं। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल टीचर मोहम्मद अमानत भी निसाबी सरगर्मियां मुतासिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्जी प्रिंसिपल गुलजेब स्कूल के इंतजाम चलाने की अहलियत नहीं रखते, मुस्तकिल हेड लगाया जाए। गुलजेब खान का कहना है कि हमारे पास दर्जा चाहारम का स्टाफ कम है, बच्चों से सफाई करवाना मजबूरी है। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने मामले का नोटिस लेते हुए DEO सेकेंडरी नई मुगल को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया। परवेज अख्तर खान का कहना है कि नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदार असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फरागोगी को मुबैना रिश्वत देकर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स लगने वाले अफसरान के गिर्द घेरा तंग। एंटी करप्शन ने इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। एंटी करप्शन ने साबिक डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ समेत कई ब्यूरोक्रेट्स के मामलात की भी छानबीन शुरू कर दी। प्लॉट्स की मेगा स्कैंडल की तहकीकात के दौरान डायरेक्टर एलडीए सप्तान कुरैशी अहमद अजीज तारड़ के खिलाफ बयान भी कलमबंद करवा चुके हैं। फरागोगी चैनल इस्तेमाल करके लाहौर गुजरांवाला में यके बाद दीगरे कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तैनात होने वाले अफसरों के मामलात की भी छानबीन की जा रही है। जराये के मुताबिक फरागोगी और ताहिर खुर्शीद को मुबैना तौर पर रिश्वत देकर तैनातियां हासिल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का भी सुराग लगाया गया है। फरागोगी के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स ताहाल तहकीकात में एंटी करप्शन से ताउन करने से गुरेजा हैं। बहुत जल्द फरागोगी के करीब समझे जाने वाली ब्यूरोक्रेसी टीम में भी गिरफ्तारियों का इम्कान है। एंटी करप्शन ने फरागोगी के पर्सनल असिस्टेंट आसिफ की तलाश भी शुरू कर दी है। जराये का कहना है ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स मुबैना तौर पर फरागोगी के पीए आसिफ के जरिए रिश्वत देकर पोस्टिंग लेते रहे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस। अदालत ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत ने यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज कर दिया। थाना सरवर रोड के मुकदमा नंबर 96/23 में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम निकाल दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया। पुलिस की दरख्वास्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से तलब किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से निगरान सूबाई वजीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर की मुलाकात हुई। मुलाकात में आला तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात पर तफसीली बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि बतौर चांसलर जामियात में गवर्नेंस के मामलात में बेहतरी लाना और आला तालीम का फ़रोग़ उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर्स की बरवक्त तैनाती यूनिवर्सिटियों में गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाइस चांसलर्स की बरवक्त तकर्रियों के लिए अच्छी शोहरत के हामिल और मुतल्लिका तजर्बा रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल सर्च कमेटियाँ बनाने का इक़दाम काबिल तहसीन है। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोकर की लीगी रहनुमा राहिला खादिम हुसैन के घर आमद भाई के इंतकाल पर अफसोस किया। सैफुल मुल्क खोकर ने इशरा में वादी दिलम में जांबाक बच्चों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने अब्दुल कादिर शाहीन समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मखदूम अहमद महमूद ने कहा, जमहूरियत मजबूत होती देख रहे हैं। आज 2018 से मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी है, कोई किंग्स पार्टी नहीं बन रही और ना ही उसकी गुंजाइश है। तहरीक इंसाफ क़यादत के गलत फैसलों की भेंट चढ़ी, बहुत ज़्यादा सीटें थी, उनको पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए थी। मखदूम अहमद महमूद का मज़ीद कहना था कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी बना दी है। इस वक्त लोग पीपल्स पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं, तमाम सूबों में कम बैक करेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और शानदार एजाज। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग बराए साल 2023 में एक मरतबा फिर से मैदान मार ली। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में नंबर 1 हासिल कर ली है। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में 101 नंबर, जबकि मजमूई तौर पर दुनिया की अव्वलीन 600 यूनिवर्सिटीज़ में 401 पोजीशन पर आ गई। इम्पैक्ट रैंकिंग में मुसलसल कामयाबी का सहरा रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान के सर जाता है, जिन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात मुतारिफ करवा रखे हैं, जिनमें कोर्स लर्निंग, आउटकम बेस्ड टीचिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज शामिल हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने तमाम तरह डिसिप्लिन और कोर्सेज में CLO बेस्ड टीचिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए जो कामयाबी से काम कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अव्वल पोजीशन हासिल की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42.tv या आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल पर भी रुजू कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।